So, what what is the major, I guess, adaptation that particularly the Pakistani batters are going to have to make when they're playing a test match out here? I think it's slightly more challenging for the batters at times because there is a difference between the bounce when we come from the subcontinent and we play here. So there are major differences. Sometimes is the bounce. So we are working on it and hopefully we'll show a good show in the match. How much confidence did the group as a whole, and I know there's been some new additions to their side, but the group as a whole draw from how well you played in that one-day series, particularly winning a game at the Wanderers, which has got quite similar conditions to what you had at here. I think seeing the confidence level of all the guys is very high and the morale is very good among the boys. I think the cricket we are playing like for the 2 months now, like we win the series against England back and home, and the way we win the series against Australia in Australia, the ODIs then comes to here in South Africa, defeating them 3-0. It's a big achievement for us. So that gives us an extra booster and extra confidence for us to go in the test series. Yeah, taking all the confidence to the tech series and try to win this series as well. Could you maybe speak about the conditions here compared to Pakistan? Obviously, more recently, Pakistan has very fast wickets also like this. Is it only the bounce that's a major difference that you've noticed? I think yeah, like bounce is a big difference. Like coming from subcontinent, I'm seeing all the videos of the last couple of years how the wickets have been preparing in South Africa. I think at times the sea movement also comes to play, and we see the last year Test match. I think 21 wickets got out in the first day, so uh, so so it's like we're seeing all the videos and everything. I think it's more of how you adapt the condition, and in the end, it's all about runs and how you can score runs on these conditions and try to put the pressure on the bowlers and just to go out there then. And how has it been in the nets, for example? Have you noticed that, and how have you been able to adapt as batters? Yeah, as a test group, we are here for now like 10-12 days now, and we have some good, really good sessions in the Wanderers. Early on, it's like it takes us like a couple of days to just get used to of the bounce and the sea movement. But now everything has been settling down. Our one-day squad is being here for like more than 15-20 days, so everything has been like settling down, and the confidence is very high, and hopefully we will show a good show in the match. सऊद अभी टेम्पा बवूमा यहाँ आए थे, उन्होंने टीम अनाउंस अपनी कर दी थी, तो मैंने बस पूछना पाकिस्तान से कोई अपडेट है टीम पे अभी तक या नहीं? देखें अब ऑनेस्टली बताओ ना आपको तो एज अ टेस्ट ग्रुप ये हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेशन है, क्योंकि हम टेस्ट टीम से अलग अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। वनडे टीम अपना बिजी बहुत टाइट शेड्यूल है। हम 2 ही दिन की प्रैक्टिस है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें और टाइम चाहिए होगा चीज़ें को सेटल करने के लिए, और उसमें ज़्यादा इनपुट आपको शान मसूद दे पाएंगे। और इस पे आपको कोई हिंट मिलती है कि वो कोई स्पिनर नहीं खिला रहे? हाँ देखें, इस तरह मैं बिल्कुल अभी उन्होंने टीम अनाउंस किया, मैं उस वक्त थोड़ा प्रैक्टिस पर था, मैंने भी इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया उसको अभी। लेकिन अगर जैसे आपने बताया तो उसमें यही नज़र आता है कि, लेकिन देखें उनका महाराज मेन स्पिनर होता है, अगर वो अवेलेबल होता है तो वो शायद खिलाते हैं। मेरे ख्याल में वो अनफिट है क्या कुछ है, मुझे इतना श्योर नहीं हूँ उससे रिलेटेड। लेकिन जितना भी नज़र आ रहा है पिच में अच्छा खासा जो है वो मॉइस्चर भी अभी नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल 2 दिन है अभी टेस्ट में शुरू से पहले, देखते हैं किस तरह का पिच रहता है। और आप इसको ऑस्ट्रेलिया से किस तरह कंपेयर करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आप पाकिस्तान में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, ऑस्ट्रेलिया में आपका टूर वो शायद बैटिंग में इतना अच्छा नहीं रहा, तो ये कंडीशंस वाइज ये कितना सिमिलर, इज इट सिमिलर, और आपको किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया जब मैं गया था तो शायद मेरा ख्याल है कि उस तरीके के प्रिपरेशन करने का ना वो टाइम नहीं मिला था, और मेरा फर्स्ट टूर ही था ऑस्ट्रेलिया का। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से कि यार वहाँ क्या मुझसे गलतियाँ हुई और क्या चीज़ें मैं अडॉप्ट कर सकता था। लेकिन यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया अपने आप को प्रिपेयर करने का, और जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, जो कॉन्फिडेंस है अभी, जिस तरह पीछे परफॉर्मेंस भी लगी हुई है, और तो मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें आपको और जो है वो अच्छा फील कराती हैं, आप मेंटली आपको अच्छा रखती हैं। तो कोशिश यही होगी कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो, जो जो मैच उस तरह चल रहा हो उसके मुताबिक खेलूँ। और इन दी एंड मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मेरे लिए पाकिस्तान की विन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा हमेशा से फोकस उस पर रहता है। तो मैं जो भी कंट्रीब्यूट करूँ उसमें हम पाकिस्तान को मैच जिताऊँ। एंड फाइनली कोचिंग चेंज हुआ है अभी, ऑब्वियसली जेसन गिलेस्पी गए हैं और आफ्टर ट्रेवल डे, एज अ बैटर या ग्रुप में उस पर क्या एक्चुअल डिफरेंस आता है? देखिए कोचिंग ग्रुप चेंज हो ही रहा है थोड़ा सा। अगर हम लास्ट 1-1.5 साल से देखें तो
इतनी ज़्यादा चीज़ें सेटल नहीं हो रही, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो है वो नए लोग आते हैं, नए आपको उनसे इंटरेक्शन करने में जो है टाइम लगता है। लेकिन देखें, हमने आके भाई के साथ भी हम शुरू से काम किया हुआ है। जैसे अगर आप हम अपने अंडर 90 लेवल में टीम में देखें तो कहीं ना कहीं आके भाई से हमारा रब्ता रहता है। फिर शाहिद असलम जो नए आए हैं टीम के साथ, फिर जो मसरूब है टीम के साथ हैं, तो उनके साथ हमारा बचपन से एक रिलेशन है, तो उसको अडॉप्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता, मैं समझता हूँ। हाँ, कि अगर कोई बिल्कुल न्यू पर्सन आता है तो उसको थोड़ा सा अडॉप्ट करने में शायद मेरे ख्याल में टाइम लगता है, लेकिन जो ये कोचिंग ग्रुप है इसको अडॉप्ट करने में कोई ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत फैमिलियर है। थैंक्स।